start हो जाए, then I will add. How many are left? Okay. So you all join your hands, close your eyes, and get ready for the Agam. Siren. Now you all mute yourself, beta. You all have to mute. Fast. Quick response. Good. Very good. So first 21 have joined. So first let me take your attendance first. Okay, attendance I have taken. Now, what about homework? Have you done your homework? Done? Yes or no? Give your response, beta. Yes, 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 yes. Write Y in chat box if you have done. Write N if you have not done. Let me check one by one first. Chat box, चलिए Y N. सौम्या का N है. Okay, Laksh Y, Sandesh, Arpita Y. Soumya, unmute beta. Why you have not completed your homework? What happened? Sarthak Y. Ma'am, I forgot to do. I will do today. What beta? Your voice is not clear. I forgot to do. I Today, forgot to do. I will do today. Achha, today you will complete. Do you want to Yes, say this? ma'am. Today you will come. Okay. But today you have to complete means you have to complete beta. Okay? Yes, ma'am. Shashank, Sony, ma'am, my camera is not working. Okay, chalo, koi nahi hai. It's okay. So first we will discuss two things. Number one, word problems, and number two, how to solve equation. Okay, so for that, wait. Okay, now is the screen visible? Any one of you say? Give Yes, me. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read what is written on the top. Algebra helps us relate unknown quantities and find their values. It's okay. Wait for 1 minute. I have to check one more thing. Just you wait for 1 minute. Algebra to solve for unknowns in our everyday life problems. Philip bought 2 books from the market for rupees 260. He does not remember the price of the books, but remembers that one book costs rupees 20 more. See how we can use algebra to solve for unknowns in our everyday life problems. Philip. Okay, is voice clear? Any one of you tell? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, listen carefully. Bought 2 books from the market for rupees 260. He does not remember the price of the books, but remembers that one book costs rupees 20 more than the other. What is the cost of each book? Well, Philip bought 2 books and he forgot the price of the books. But he remembered that one costs 20 more than the other. So if Philip has learned algebra well,
very easily use algebra to solve for the price of the two books. How can we do it? Let's see. So the first thing is to determine what is the unknown, or Okay, now listen beta. First you note down this question. Short में लिखो and first you have to try. Then I will show you solution. First you write question in short. What is written? What is 260? Vyom, unmute beta. Vyom, Prices of two books he What? bought. Repeat again. Prices of two books he bought. Yes. Sum of prices of two books. ध्यान से देखना बाकी लोग सुनो बेटा. What is 260? 260 मान लो आप मार्केट में गए, आपको मैथ्स की बुक परचेज करनी है और आपको साइंस की परचेज करनी है. सो व्हाट इज 260? 260 इज द कॉस्ट ऑफ टू बुक्स. आप इसको शॉर्ट में अपनी कॉपी में लिखते जाओ. यू हैव टू सॉल्व. तो 260 पहले लिख लो. कॉस्ट ऑफ टू बुक्स, सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू बुक्स रुपीज 260. ही डज नॉट रिमेम्बर द प्राइस ऑफ द बुक्स. उसको ये नहीं पता कि दोनों बुक्स कितने कितने की है. ये उसको नहीं मालूम कि एक बुक 200 की है, दूसरी 60 की है, कि दोनों 130 की है, या मतलब दोनों की बुक्स का प्राइस उसको नहीं मालूम. बट रिमेम्बर्स दैट वन बुक कॉस्ट ₹20 मोर देन द अदर. बट उसको सिर्फ इतना पता है कि एक बुक की कॉस्ट दूसरी बुक से 20 मोर है. What is the cost of each book? Now I will give you only. Ma'am? Yes, beta. Ma'am, first you click on your screen because the questions one line is not clear. Okay, beta, no problem. मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, लिखते जाओ आप. First, what you have to write? Cost of two books equals to rupees 260. Write down. Total cost of two books equals to rupees 260. Written. Number 1. Number 2, you have to write cost of one book is ₹20 more than the other. एक बुक की कॉस्ट दूसरे से 20 ज्यादा है. ये हो गया. What is the cost of each Can you book? repeat this? Cost of one book is ₹20 more than the other. Cost of one book is ₹20 more than the other. What is the cost of each book? आपको ये बताना है कि हर बुक की कॉस्ट कितनी होगी. Ma'am, one. आंसर नहीं बताएगा कोई. आंसर कोई नहीं बताएगा अभी. बिल्कुल नहीं बताना अभी. अभी आंसर बिल्कुल नहीं बताना. तो ये आपके लिए क्वेश्चन है. आप जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बुक? दोनों बुक की कॉस्ट आपको बतानी है. दोनों बुक्स कितने कितने की होंगी ये बताना है आपको. आगे सबको समझ में क्या बताना है आपको? जल्दी से फटाफट करो. अभी मैंने स्टॉप कर दिया शेयरिंग. अब आप इसको फटाफट सॉल्व करो. अब मुझे जल्दी से बताओ इसका सोल्यूशन. Ma'am, 13. 130. अभी आंसर बाद में बेटा, मुझे सॉल्व करके रखी रहो.
मैम मैम जो ये कॉस्ट थी सही है क्या? इज स्क्रीन विजिबल बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस फिलिप मैम सेम क्वेश्चन वही दिख रहा है, सेम ऊपर। Yes, ma'am. फिलिप बॉट Yes, 2 बुक्स। ma'am. अच्छा ठीक है, ओके आंसर। अब जिससे मैं पूछती हूँ वो बताएगा। फर्स्ट व्योम, यू टेल व्हाट इज योर आंसर? Ma'am, the cost of one book is 120 and the other is 140. 120 140। आरुष, आई थिंक योर आंसर इज सेम, 120 140। एम आई राइट? Yes, ma'am. अच्छा 120 140 और किसका आया है? बिल्कुल ऑनेस्टली बताना बेटा, बी ऑनेस्ट, जल्दी। मैम मेरा मैम 121 30 कैसे आया? बता रही बेटा, बता रही। वेट। मैम अच्छा मेरा ध्यान से देखो। 160 आया है। अच्छा चलो अभी जिसकी जो मिस्टेक है आप ध्यान से देखना। अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपने पहले खुद ट्राई किया है ना। इसकी कंडीशन बहुत अच्छे से समझना। मैम वेट, मेरा है 110 एंड 150। ठीक है, जिसका भी जो आया अब अपना देखते जाना किससे क्या मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन में क्या है देखो, व्हाट इज 260? व्हाट इज 260? कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, सम ऑफ द कॉस्ट 2 बुक्स, यानी 1 बुक प्लस सेकंड बुक, दोनों की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ सेकंड बुक, और दोनों की मिला करके 260 है रुपये। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ऐसे नहीं लिखोगे कि दोनों की कॉस्ट है ₹260। ओके, अब आगे देखो क्या कंडीशन है। वन, बेटा म्यूट, यू ऑल म्यूट योरसेल्फ फास्ट। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹20 मोर देन दी अदर। अब आपको किसी भी बुक की कॉस्ट नहीं मालूम, यू डोंट नो कॉस्ट ऑफ एनी बुक, आपको ये नहीं पता कि कोई भी बुक कितने रुपीस की है। आप सपोज करेंगे, यस बेटा, मैम मेरा आ गया 240। 240 तो आंसर नहीं है बेटा, आंसर इज नॉट 240। 120 और 140 है। हाँ 120 एंड 140। चलो कोई बात नहीं, अब देख लो पहले, देन हाँ तो अब आपको सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज दैट कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹X। देखते जाना ध्यान से, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹X। हम ये सपोज कर लेंगे एक बुक X रुपीस की है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अननोन हो उसको या तो X या Y या Z ABC PQR, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस X को देना। 2 वेरिएबल सपोज करना है, देन X एंड Y, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको X ही सपोज करना, आप Y Z कुछ भी सपोज कर सकते हैं। यदि एक बुक X रुपीस की है तो दूसरी बुक संदेश धाकड़, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बुक? 2x। ध्यान से पढ़ क्वेश्चन को। 1 बुक कॉस्ट ₹20 मोर देन दी अदर, ₹20 मोर। मैम x प्लस 20 260 माइनस x 20। मैम 260 माइनस x। ए बेटा 260 माइनस X भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बट दूसरा ये भी कर सकते हो, बेस्ट है कि आप इसके टर्म्स में लिखो ₹X प्लस 20, ये लिख लो, ये सबसे अच्छा है। एक बुक, कंडीशन देखो ध्यान से, कंडीशन ये है कि एक बुक की कॉस्ट दूसरे बुक से ₹20 मोर, मोर मीन्स प्लस। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹X, देन सेकंड बुक की कॉस्ट हो जाएगी X प्लस 20। अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का सम कितना है? 260। व्हाट इज X? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बुक। व्हाट इज X प्लस 20? कॉस्ट ऑफ सेकंड बुक। और दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की कॉस्ट को यदि हम ऐड कर दें तब आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा? इन दैट केस रिजल्ट इज 260। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बनाना आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। तो क्या कंडीशन मिल गई? X, व्हाट इज X? कॉस्ट ऑफ 1 बुक प्लस X प्लस 20, X प्लस 20, दिस इज X, ध्यान रखना ये X है, और दोनों का सम इक्वल है 260 के,
इसमें किसी को डाउट हो, एनीवन एनी डाउट यू कैन आस्क। ये इक्वेशन कैसे मिली, जल्दी बोलो। क्लियर? मैम मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। ए संदेश, क्या इतनी सिंपल लैंग्वेज है बेटा, कि दो बुक को यदि हम मिला दें कॉस्ट को तो 260 रुपीज की दोनों बुक की कॉस्ट है। आप मार्केट में बुक परचेज करने गए, दोनों बुक को आप खरीदोगे तो आपको उसको शॉपकीपर को 260 देना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता कि दोनों बुक्स अलग अलग कितने कितने रुपीस की हैं, आपको सिर्फ ये पता है कि दोनों की कॉस्ट मिला के 260 है। साथ में ये पता है कि एक बुक दूसरे बुक से 20 रुपीज ज्यादा की आ रही है। कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹20 मोर देन दी अदर, ये आपको मालूम है। तो हमने एक बुक की कॉस्ट एक्स सपोज कर लिया, तो दूसरी बुक कितने की होगी? कितने की होगी? एक्स प्लस 20। यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें, यदि हम इसको, मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, चलो। व्हाट इज एक्स? कॉस्ट ऑफ वन बुक। व्हाट इज एक्स प्लस 20? कॉस्ट ऑफ सेकेंड बुक। Two books. Cost of two दोनों books. का सम कर देंगे, तो सम करने से क्या मिल गया? 260। अब तो समझ में आ गई इक्वेशन कैसी बनी, जल्दी बोलो फास्ट। Ma'am. अब आपस को ऐड कर लो लाइक टर्म्स, एक्स और एक्स मिला के कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स कितना होता है, जल्दी बोलो। 2x। 2x. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी 2x plus 20. प्लस 20 इक्वल्स टू 260। ये हो गया। अब सबसे पहले 20 उस साइड जाएगा, 20 जब उस साइड जाएगा तो प्लस 20 विल बी माइनस 20। ये प्लस उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। दिस प्लस साइन विल बी माइनस, ये माइनस हो जाएगा उस साइड जाके। तो क्या रिजल्ट मिल गया आपको? नेक्स्ट स्टेप 2x इक्वल्स टू 260 माइनस 20 विल बी 240। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग एक स्टेप और लिखोगे, माइनस दिखाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू, अब आपको मैंने क्या समझा दी, 2 से इंटू होगा, उस साइड जाके क्या हो जाता है? इंटू विल बी, इंटू विल डिवाइड। मैम ये कलर दिख नहीं रहा। यस बेटा, मैम ये कलर क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? कलर, अच्छा ओके कलर। मैम ये कलर चेंज कर रही हूँ। तो x इक्वल्स टू 240, इज दिस ओके? पिंक कलर। यस मैम। 240 डिवाइडेड बाई 2, ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट x इक्वल्स टू 120। इसका मतलब एक बुक की कॉस्ट कितनी हो गई? ₹120। अब कंडीशन में कि दूसरी बुक इससे 20 रुपीज एक्स्ट्रा की है, तो एक बुक यदि 120 की है, दूसरी कितने की हो जाएगी? 140। यानी एक बुक हो गई 120 की, दूसरी बुक हो गई 140 की। आप चेक भी कर सकते हो, दोनों को प्लस करो, 0 260 2, दोनों बुक मिला के कितने की हो गई? 260। और वही 260 आपको क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स। मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 260 माइनस 120। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब उससे क्या होगा? सोचो क्या इक्वेशन बनेगी। एक बुक x की है, दूसरी बुक है 260 माइनस x। अब आपको ये 20 के साथ इक्वेशन बनानी है। क्या इक्वेशन बनेगी, कौन बताएगा? जल्दी बोलो, हु कैन एक्सप्लेन? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये कि मान लो एक बुक x रुपीस की है। अच्छा रुको, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन फर्स्ट। हाँ, जैसे अनुमेघा कह रही कि यदि हम एक बुक की कॉस्ट x रुपीस मान लें, कॉस्ट ऑफ वन बुक, वैसे बेस्ट मेथड ये जो मैंने आपको कराया था, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बट ये भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वन बुक, सॉरी एरो नहीं लगेगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹x, कॉस्ट ऑफ सेकेंड बुक वो ले रही है ₹260 माइनस x। इस समझ में आगे 260 माइनस x क्यों होगा, जल्दी बोलो, इज इट क्लियर? वाई 260 माइनस x? यस मैम। क्योंकि दोनों बुक की कॉस्ट यदि हम प्लस कर रहे हैं तो 260 हो रहा है। यदि एक x की होगी तो दूसरी कैसे निकालेंगे? सम में से इसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। मान लो एक बुक है 100 की,
और दोनों बुक मिला करके 260 की हैं, तो दूसरी बुक कितने की होगी? 260 माइनस 100 यानी 160 की। तो वही x मैंने 100 की जगह x यहाँ ले लिया, 100 तो जस्ट एग्जांपल के लिए लिया। ओके मैम मेरा फॉर्मूला अलग था, पहले मैंने 260 का हाफ कर लिया, 130 आ रहा है, तो बिल्कुल फिर नहीं, 130 बिल्कुल wrong, 130 हो गया, तो फिर wrong, मैंने एक बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। आप हाफ करोगे, आपके पास ऐसा हाफ का कोई ऑप्शन नहीं गिवन। वो ट्रायल एंड एरर मेथड अलग चीज है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे देयर शुड बी प्रॉपर स्टेप। तो आप उसका हाफ करके बिल्कुल भी नहीं करोगे, ध्यान रखना ये। तो एक है 260 माइनस एक्स। नाउ आरुष अनम्यूट। Yes, ma'am. ओके बेटा, अब इक्वेशन बनाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या इक्वेशन होगी? आप 20 से रिलेट करना इसको, बोलो। x plus bracket 260 minus x. No, wait. संदेश Ma'am, संदेश ma'am, what was the question? यस बेटा, Ma'am, what was the question? सेम क्वेश्चन, देयर इज नो चेंज इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बस वही क्वेश्चन है। आपने किस मेथड से किया था? Ma'am, I did like this. Ma'am, I take two values. I took two values like x and y. नो, Then ओके नाउ लिसन बेटा, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट्स ओके, यू कैन टेक टू वेरिएबल, बट इफ यू हैव टू टेक ओनली वन वेरिएबल and you have to solve this question by using one variable, then how will you solve? You can solve this question by using two methods. एक मेथड जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, सेकंड मेथड जैसे अनुमेघा का डाउट है कि एक को x ले लें तो दूसरे की कॉस्ट हो जाएगी 260 माइनस एक्स। तो अब हमारा 20 का डिफरेंस है दोनों का। अब क्या इक्वेशन बनेगी? मेरा क्वेश्चन ये है, जल्दी बोलो। ma'am, it can be like that. Ma'am, हाँ, 260 minus x is equals to 20. 260 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20. अच्छा, कैसे बनेगा आंसर फिर? Ma'am, अच्छा ध्यान after दो, ओके म्यूट करो। नहीं बेटा, रॉन्ग मैम है। हाँ बोलो। 260 minus 2x equals to 20. नहीं, लेकिन ये एक स्टेप तुम आगे का बता रहे हो, प्रीवियस स्टेप, ये आपका सेकंड 260 स्टेप है। minus x plus x equals to 20. हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। या फिर दूसरा मेथड, हाँ चलेगा, इट्स ओके। हाँ अनुमेघा अनम्यूट बेटा। यस मैम। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक बुक की कॉस्ट क्या क्वेश्चन में गिवन है? कॉस्ट ऑफ वन बुक मैंने ले लिया 260 माइनस एक्स विल बी 20 मोर देन दी अदर। एक बुक की कॉस्ट है 260 माइनस एक्स, दूसरी बुक की कॉस्ट है एक्स। अब क्वेश्चन में दिया कि एक बुक की कॉस्ट दूसरे बुक्स के 20 ज्यादा है, यानी कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20। ये हो गया x प्लस 20। क्यों x प्लस 20? क्योंकि एक बुक की कॉस्ट दूसरे बुक की कॉस्ट में यदि हम 20 प्लस कर देंगे तो हमें एक बुक की कॉस्ट मिल जाएगी। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? फर्स्ट यू टेल मी दिस। यस मैम। ये सन्ना के कैसे लिख दिया मैंने? यस मैम। नो मैम। क्वेश्चन, ये सेंटेंस देखो बेटा, क्वेश्चन। अच्छा संदेश, तुम्हें पहला वाला मेथड आ गया जो मैंने फर्स्ट बताया था फर्स्ट टाइम? एक बुक की कॉस्ट लिया था मैंने x, दूसरे बुक की कॉस्ट मैंने लिया था x प्लस 20, और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया था। ये है फर्स्ट बुक की कॉस्ट, ये है सेकंड बुक की कॉस्ट, और इन दोनों को मिला करके कॉस्ट इज गिवन 260 और इसको सॉल्व कर लिया था। इज दिस क्लियर? नो मैम। इसमें क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है, बोलो। व्हाट इज x? संदेश। मैम x फर्स्ट बुक की कॉस्ट, और x प्लस 20 क्या है? सेकेंड बुक की कॉस्ट। और दोनों की कॉस्ट मिलाकर के कितनी है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? कितने रुपीस की दोनों मिला के? हाँ, तो फिर क्या बचा बेटा? ये फर्स्ट बुक की कॉस्ट प्लस ये सेकंड बुक की कॉस्ट, और दोनों को जब प्लस कर देंगे इक्वल्स टू 260। खत्म। क्लियर? यस मैम। दोनों को मिला दिया, दोनों की कॉस्ट को इक्वल्स टू 260। एक तो ये है, दूसरा अनुमेघ जिसको समझ में आ गया ये वाला सिर्फ यही मेथड करना। अनुमेघा अब तुम्हारे लिए बेटा,
अब हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स को उस साइड ले जाएंगे, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। प्लस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 260 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 20। अब हम ये जो प्लस 20 है उसको इस साइड ले आएंगे, तो प्लस 20 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस तो 260 माइनस 20 कितना होगा, 260 माइनस 20 240 240। तो 2x इक्वल्स टू आ गया आपका 240, 2x इक्वल्स टू 240, 2x इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 240 by 2 इक्वल्स टू, equals to 120. एक बुक की कॉस्ट आ गई 120, x आ गया आपका 120। दूसरे बुक की कॉस्ट आपने क्या सपोज किया था, 260 माइनस 260 एक्स। minus अब x 260 में से 120 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 140. आर यू गेटिंग सेम आंसर, Yes, ma'am. इट मीन्स यू कैन अप्लाई एनी मेथड, जिसको जो समझ में आए वही अप्लाई करना, दोनों नहीं अप्लाई कर देना, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. चलो ओके, अब आप एक बार इसको शॉर्ट में required देख to लो, find. So Philip wants to find इसको मैं शॉर्ट में फटाफट समझा देती हूँ, बस यहीं से वेट। is our assumed value of the book x and x plus 20. So the next step is to equate these two. So we equate these two and form an equation. Observe that it is a linear equation in one variable, and we have already learned how to solve a linear equation in one variable. So we can solve it and find the. ओके ये स्टेप सबको समझ में आ गया, स्टेप ध्यान से देखो। सबसे मैम लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन में जो सिंपल इक्वेशन आपको बताया था बेटा, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डे यही तो बताया था संदेश। सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो प्रेजेंट नहीं था क्या बेटा, प्रेजेंट था। फिर तो x के जितने भी इक्वेशन होती है 2 a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो, ये सिर्फ वन टाइम x लिखा हो, उसका मतलब होता है लीनियर इक्वेशन है जब इक्वल्स टू का साइन हो। वन वेरिएबल बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज x। अच्छा मुझे आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराना पड़ेगा, रुको भी मैं स्लाइड्स दिखाती हूँ। तो इस टाइप की इक्वेशन जो भी होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, a की जगह यू कैन टेक एनी नंबर, इन प्लेस ऑफ b यू कैन टेक एनी नंबर। वैसे तो रियल नंबर होता है, बट अभी आपके कॉन्सेप्ट में रियल भूल जाओ, आप समझो कोई भी प्लस कोई भी माइनस, फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन, इंटीजर a और b की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 होगी, यानी वन टाइम। इस टाइप की इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, क्लियर। यस मैम। हाँ तो बस मेन इंपॉर्टेंट है ये स्टेप देख लो फटाफट, बस सॉल्व करना आपको आता है। प्राइस ऑफ बुक 1 यहाँ रुपीज लगा देना, रुपीज। प्राइस ऑफ बुक 2 यहाँ ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देना रुपीज। टोटल प्राइस ऑफ द बुक, अब आप ये वाला रुपीज यूज नहीं करोगे जो आपका स्टैंडर्ड अब आ गया, ये वाला रुपीज यूज करें। टोटल प्राइस ऑफ द बुक, ये फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों को प्लस कर दिया। अब ये है टोटल प्राइस ऑफ बुक, ये भी है दोनों प्राइस के बुक, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, खत्म। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया सबको। यस मैम। चलो गुड गुड गुड, नाउ कम टू नेक्स्ट। इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. Any one of you read what is written? Any one of you read? Linear equation in one variable. Okay. PPT है ना, दिख रहा है ना PPT? Yes, ma'am. ओके गुड गुड गुड। हाँ अब क्या नाम इसका, संदेश, अब ध्यान से देखना। यस मैम। मैम ये रब कर दीजिए। यस बेटा, यस बेटा। अब देखते जाना। इसमें मैम ने कितनी मेहनत भरी होगी। हाँ इधर देख तू संदेश। हाँ अब जितनी मैम ने मेहनत की है उससे ज्यादा तुझे मेहनत करनी है, तब तो मैम का कुछ फायदा है, सही है ना। अब तुम्हारे लिए किया मेहनत। अब देखो ध्यान से, जो तुम्हें डाउट था तेरा, अब मैं समझा रही हूँ, समझते जाना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म
ax plus b equals to c or ax equals to b where a is not equals to 0, ये एक्चुअली में इधर ये हो गया है, यहाँ लिखना है a not equals to 0। यानी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज ए, एनी नंबर। व्हाट इज बी, यू कैन टेक एनी नंबर। व्हाट इज सी, यू कैन टेक एनी नंबर। फॉर एग्जांपल 2, अच्छा यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर एग्जांपल 3x plus 9 equals to 0। What is the value of a, 3। What is the value of b, 9। What is the value of c, 0। 7x plus 5 equals to 2x minus 9। ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल लीनियर इक्वेशन का है, क्योंकि इस 2x को यदि हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5x। 5x plus 5 equals to minus 9। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहुंच गए, ax plus b equals to c। ax plus b equals to c भी हो सकता है, ax plus b equals to 0 भी हो सकता है। दोनों करेक्ट हैं, 100% करेक्ट है, क्योंकि b और c सॉल्व हो सकता है। Now it's clear what is the meaning of linear equation? Hurry up. Clear? Yes, ma'am. What is the meaning of linear? Linear का मतलब होता है कि highest power of variable is 1। पावर का मतलब क्या होता है, फिर से देख लो। पावर का मतलब होता है, सपोज, पावर का मतलब पहले समझ लो। मान लो मैं लिखती हूँ 2 into 2 into 2। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। So we will write 2 raised to the power 3। 2 की पावर 3। Yes। और मान लो x, Like, ma'am, x into x into x। हाँ x into x हो जाएगा x स्क्वायर, 2 आ गया। बट यदि x एक ही बार रहेगा तो x की पावर 1। तो लीनियर का मतलब है कि x की पावर यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। देखो कहीं x square multiply by x equals to x cube। हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब मान लो मैं कहीं पे ये लिख देती हूँ 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर नहीं है। अब तक समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी बोलो। मैम जिसमें पावर लगती है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। हाँ, जिसमें पावर लगती है लीनियर इक्वेशन नहीं आता, समझ सकते इसको। हमारे कोर्स में मैम पावर 1 की लगेगी, मैम आगे भी आ सकती है। बिल्कुल बेटा, ये 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। बट अभी मैं आपको नहीं बता रही, पावर 3 होगी तो क्यूबिक। बट अभी छोड़ो, जब आपको टाइम आएगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। यस ओके, नाउ नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ भी लिखा लीनियर इक्वेशन, लेट मी सेलेक्ट पेन। लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जिसकी पावर x की पावर यदि 1 होगी तो उसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। क्योंकि डिग्री का मतलब आपको बताया गया होगा, नहीं मालूम तो आप देख लो। डिग्री का मतलब होता है उसकी पावर। यदि किसी में x स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर प्लस 2x, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री है 2। तो यदि पावर 2 होगी तो उसको 2 डिग्री कहलाती है। यदि इसको मैं 3 कर दूं, 3 डिग्री, 4 कर दूं, 4 डिग्री, 5 कर देंगे तो 5 डिग्री का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें फर्स्ट डिग्री मतलब जिसमें x की पावर 1 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, वी कैन एक्सप्लेन। नेक्स्ट मैम जैसे हमने ये x3 स्क्वायर लिखा है, इसको हम 3x भी लिख सकते हैं। यस बेटा, रिपीट अगेन, रिपीट। मैम जैसे हमने x की पावर 3 है, x3 स्क्वायर लिख दिया है, उसके बाद हम उसको 3x भी तो लिख सकते हैं। x की पावर, मैम तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? हाँ सुनो सुनो, चलो गुड गुड, चलो कोई बात नहीं, गुड, अच्छा पूछ लिया तुमने। x की पावर 3 का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब चलो x छोड़ो, मैं नंबर लेके बताती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 3। बट यदि आपका 3 इंटू 2 लिखा है तो 3 इंटू 2 मतलब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से 3x का मतलब है कि 3 कोई जो नंबर है 3, उसको हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और x क्यूब का मतलब है कि x को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे समझ में क्लियर? 4x का मतलब हो जाएगा 4 इंटू एक्स। 5x का मतलब हो जाएगा 5 इंटू एक्स। बट x की पावर यदि 5 होगी, इसका मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स।
क्लियर? 5 times. आगे सब कुछ में? Yes, ma'am. चलो ओके गुड. नाउ नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल. अच्छा हाँ, सोल्यूशन का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन? बताया था ना सोल्यूशन का, जो इक्वेशन को Yes, ma'am. सेटिस्फाई. डिड आई एक्सप्लेन? फॉर एग्जाम्पल सपोज Yes, आपको ma'am. पता करना है कि इज 4 अ सोल्यूशन ऑफ दिस. क्या 4 इसका सोल्यूशन है? हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 4. तो 3 into 4 -5 7. लेकिन आप इसको ऐसे न सॉल्व करके, बेस्ट इससे भी मेथड है, आप ऐसे सॉल्व करना. पहले लिख देना LHS. LHS लिख करके, व्हाट इज LHS? 3x - 5. ये LHS है. फिर आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 4. 4 को पुट करके आप ये पूरा सॉल्व करके दिखा देना. ये LHS सॉल्व कर देना. यहाँ पे सॉल्व करते 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 फाइनली यू विल गेट 7. ये हो गया LHS. एंड व्हाट इज RHS? RHS कितना गिवन है? 7. हाँ, RHS इक्वल्स टू यहाँ लिख देना इक्वल्स टू RHS. It means we have proved LHS equals to RHS. Therefore, 4 is a solution of this equation. Clear? Yes, ma'am. Good. चलो next. To isolate this. अब एक चीज और ध्यान से देखना. ये है कि ऑपरेशंस दैट अनडू ईच. अच्छा छोड़ो, इट इज एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. इसको छोड़ो, ये समझो. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑपरेशन. इनवर्स का मतलब आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि यदि x + 2 = 5, इसको सॉल्व कर. ओके, एम आई ऑडिबल बेटा क्लियरली? Yes, ma'am. वैसे बेटा मैं अपनी पूरा फोर्स लगा के पूरी अच्छे से बात करती हूँ कि आपको पूरा वॉइस क्लियर हो. सारी एनर्जी लगा के बोलती हूँ, इसलिए पूछ लेती हूँ. चलो ओके. तो x + 2 = 5. मैंने आपको समझा था यदि x की वैल्यू निकालना है, यदि प्लस होगा तो दोनों साइड क्या कर देते हैं? जल्दी बोलो फास्ट. प्लस होगा तो 2 एडिशन के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? एडिशन. तो x + 2 होगा. तो 2 को कैंसिल करने के लिए हम करेंगे -2. देखो मैं कलर चेंज करके बता रही हूँ आपको. और लेफ्ट में माइनस करेंगे तो राइट में माइनस करेंगे. ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा. x = आपको मिल गया 3. इसीलिए लिखा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑपरेशन. इनवर्स डिवीजन. हाँ, यस. मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन. कैसे? मान लो कहीं पे 2x = 5 है. अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है x में. अब 2 को कैंसिल करने के लिए हम 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरे को, लेफ्ट साइड को. अब यदि लेफ्ट को डिवाइड करेंगे तो राइट को भी डिवाइड करेंगे. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. x की वैल्यू आ गई 5/2. यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन करेंगे और डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे. वो कैसे करेंगे वो भी देख लो. अब मान लो क्वेश्चन में है वेट x/2 = 5. अब हमें इस 2 को कैंसिल करना. इस 2 को कैंसिल करने के लिए डिवीजन का इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन. इंटू 2 करेंगे और इधर भी इंटू 2 करेंगे. मैम आपने वो x की वैल्यू 5.2 लिखी थी, उसकी जगह हम 0.25 भी लिख सकते हैं. ए लड़के, 5/2 को जरा डिवाइड करना क्या होगा? 2 की टेबल पढ़ो, 5 से ग्रेट ज्यादा न जाए. 2 1 = 2, 2 2 = 4. पॉइंट, अब पॉइंट लगेगा. ये देखो इतना बड़ा पॉइंट लगा रही, इतना बड़ा पॉइंट नहीं. यस 2.5 यू कैन राइट. बट बेस्ट है कि यदि आपसे जब तक डेसिमल में क्वेश्चन ना हो तो आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे? कोई जरूरत नहीं है. चाहो इट्स नॉट रॉन्ग, कर सकते हो. कि समझना कि एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन एंड फॉर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? ठीक है. ओके बेटा, बोलो यस और नो. इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लेके जाओ. बस खैर छोड़ो, स्क्रीनशॉट मत लो. इट्स वेरी सिंपल. ये तो रिवीजन के लिए, लेव इट. जस्ट शॉर्ट में देख लेते हैं. वही है, +4 है, दोनों साइड -4 किया. देखो यहाँ पे माइनस है
दोनों साइड प्लस किया। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर आ रहे समझ में? यस मैम। हाँ देखो, यह +4 था तो उसको कैंसिल करने के लिए 4 को -4 कर दिया। माइनस था तो y की वैल्यू निकालने के लिए -6 को हटाना पड़ेगा, दोनों साइड प्लस कर दिया बस। यहाँ भी देख लो, इंटू था 3 का। वेट, अच्छा आपका टाइम हो गया काफी। ओके, अब इधर देखो, रुको, लेट मी सेलेक्ट पेन। यहाँ 3 का इंटू हो रहा है इसलिए दोनों साइड डिवाइड कर दिया 3 का। इधर भी डिवाइड, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया गलती से। ये हो जाएगा 3x/3 इक्वल्स टू 9/3। 3 कैंसिल और 3 3 9। आंसर विल बी x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे डिवाइड था इसलिए दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। ओके, बस आज के लिए इतना काफी है। अब आपको क्या ट्राई करना है वो ध्यान से देखो। आपको एक्सरसाइज यू हैव कंप्लीटेड टिल 4.2। एनीवन ऑफ यू टेल? यस मैम। ओके, तो आज आपको ट्राई करना है 4.3। बाकी नेक्स्ट ट्राई करना है, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर मैम। यस मैम। हाँ बोलो। मैम हम लोग ये 4.3 रफ में करके अगर आंसर सही हुआ तो फेयर में कर सकते हैं। रिपीट बेटा, रिपीट अगेन। हम जब तक डिस्कस नहीं होगा तब तक रफ में कर सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं बल्कि अच्छा है कि पहले रफ में करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके चलो, साई राम बेटा, इट्स ऑलरेडी आपका 15-12 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, नो प्रॉब्लम। ओके साई राम, लीव 1 by 1 बेटा। आई विल बी द लास्ट। साई राम मैम। साई राम बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा, वेलकम। मैम ओके साई राम, बाय बेटा, बाय बाय। साई राम, साई राम। साईराम मैम। साई राम।